صاحب نے آج جو حوالے پڑھائے ہیں اس کا متعلق جو ہے وہ ادھر قیامت المسیح کے یا جی اٹھنے کے تعلق سے کچھ بن نہیں رہا، لیکن پھر بھی آپ نے سنا، اور اگر آپ نے سنا ہوگا تو آج میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ کلام آپ کی لائف کے اندر ایک بڑی تبدیلی کا باعث ہوگا۔ ہاللیلویا۔ ادھر قیامت المسیح تاریخ کا ایک عظیم دن، اور خاص طور پر مسیحی قوم کے لیے، اور خاص اور خاص اس کے شاگردوں کے لیے۔ اگر خداوند یسوع المسیح تیسرے دن مردوں میں سے نہ چیختے تو شاید آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ ایک باپ قبر کے ساتھ ختم ہو جاتا، لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کا، جس نے موت کے اوپر، جس نے قبر کے اوپر، جس نے ابلیس کے اوپر اس نے فتح پائی اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اسی سبب سے اس کے شاگرد اس کے لیے مر مٹے، اس کے لیے انہوں نے جان دے دی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا جن کی وہ پیار بھی کرتے ہیں، ان کا ربی، ان کا استاد جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو کوئی قوم چھپا نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی قبریں ہیں اور لوگوں کی محدثوں کی، نبیوں کی، ولیوں کی قبریں موجود ہیں، لیکن ایک قبر ہے موجود تو ہے لیکن وہ خالی ہے۔ ہاللیلویا۔ پریز گاڈ۔ ہاللیلویا۔ یہ ہمارے لیے کسی طور سے بھی ڈسٹرب ہونے کا باعث نہ ہو۔ اپنے بچوں کو اپنے پاس اپنی گود میں رکھیں تاکہ ہم تھوڑی دیر جب ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو سننے والے ہیں تو ہم اس پر غور کر سکیں۔ آپ نے دو حوالے آپ کے ساتھ پڑھے گئے آپ کے سامنے، ایک قضات کی کتاب میں سے جہاں پر اسرائیلی ہیں، جو بھائی جوید نے حوالہ پڑھا آپ کے سامنے، وہاں پر اسرائیلی ہیں، اور وہ اسرائیلی جب ان کے لیے مدیانی ان کے خلاف آتے ہیں، ان کے خلاف عمالیکی آتے ہیں اور اہل مشرق کے لوگ ان پر چڑھ آتے ہیں اور وہ اپنی جگہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل اس چیز کے عادی ہو چکے تھے اور یہ ان کے ساتھ پچھلے 7 سالوں سے ہو رہا تھا۔ جب بھی عمالیکی، مدیانی اور اہل مشرق کے لوگ آتے اور ان کی پکی پکائی فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے آتے تو یہ آگے سے بھاگ جاتے۔ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پہاڑوں کے اندر، انہوں نے ایسی جگہوں کے اندر اپنی غاریں بنا لی، انہوں نے کھو بنا لیے اور انہوں نے ایسے ایک اپنے لیے قلعے بنا لیے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا کمفرٹ زون تھا۔ وہ جو جن کو فیتھ زون کے اندر موو کرنا چاہیے تھا وہ اپنے فیتھ زون کو چھوڑ کر اپنے کمفرٹ زون کے اندر جا کر چھپ جاتے، اور پھر عمالیکی اور یہ مدیانی، یہ اہل مشرق کے لوگ ان کی فصلوں کو جنہوں نے اپنا بیج بویا ہوتا تھا ان کو تباہ کرتے، پکی پکائی فصلوں کا۔ یہ اسرائیلیوں کی یہ حالت تھی۔ فصل وہ بن اسرائیل بوتے ہیں، اپنا بیج وہ اس کھیت کے اندر وہ بوتے ہیں، اور جب اس فصل کو کاٹنے کا وقت ہوتا تو مدیانی آ جاتے، عمالیکی اکٹھے ہو کے آ جاتے، وہ دل باندھ کے آتے، وہ اپنے ڈیرے ساتھ لے کے آتے، اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لے کے آتے، اور آ کر ان کی کھڑی فصلوں کو جو پکنے کے قریب یا پک چکی ہوتی ان کو لوٹتے، ان کو تباہ کرتے اور پھر وہ چلے جاتے۔ تو بنی اسرائیل کیا کرتے؟ بنی اسرائیل چھپ جاتے۔ انہوں نے کھوئیں بنائی ہوئی تھی، انہوں نے غاریں بنائی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے لیے ایک قلعے بنا لیے تھے جہاں جو ہی دیکھتے کہ ان کے سامنے اپوزیشن آئی، ان کو تھریٹ ہوا، وہ بھاگ گئے اور وہ دیکھتے رہے کہ جب آئیں عمالیکی اور جب آئیں وہاں کے لوگ اور وہ ان کو تباہ کریں، اور یہ دیکھتے رہتے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ کبھی ان کے سامنے یہ کھڑے نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ سے ان کے مال معاشی، ان کے کھیت، ان کے معاشی طور پر وہ تباہ حال ہوئے جا رہے تھے، اور یہ اسرائیل کے لیے شرمندگی کا سبب تھا کہ وہ سیزن جو ان کا ہوتا تھا، وہ برکت جو ان کے لیے تھی، وہ ایک اور قوم جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ اس کو لے کے چلے جاتے۔ یہ بوزدل اسرائیلی اپنی غاروں، اپنی کھوؤں، اپنے قلعوں کے اندر چھپ جاتے، ان کے سامنے ان کی دشمن ان کی بلیسنگ کو وہ تباہ کرتے، ان کی جو بلونگنگ تھی ان کو وہ تباہ کرتے، ان کا وہ نقصان کرتے، ان کو لوٹ کر چلے جاتے، اور اسرائیل میں کوئی بھی نہیں تھا
जो अपने खेतों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए उनके साथ लड़ता। और ये एक दिन का काम नहीं था, कई सीजन उन्होंने इसी तौर से अमालिकियों के हाथों, मदियानियों के हाथों, अहले मशरक के लोगों के हाथों वो लुटते जा रहे थे और उनको किसी को परवाह नहीं थी। वो तकलीफ में थे, वो कर्म में थे, उनका खाना कैसे होता था, उनका सीजन कैसे चलता था, उनके साल, उनके दिन कैसे गुजरते थे, लेकिन वक्त जब आता तो वो सिर्फ और सिर्फ उस दुख को देख रहे थे, उस पे आहें भरते होते, लेकिन कोई नई शख्स ऐसा नहीं था कि जो खड़ा होता और उनका मुकाबला करता। दूसरा हवाला इसके बिल्कुल तजाद है। जब आपने सामुएल की दूसरी किताब उसका 23 बाब उसकी 11 और 12 आयत को पढ़ा लिखा, बाद उसके हरारी अजी का बेटा सम्मा था और फिलिस्तियों ने उस कता जमीन के पास जो मसूर के पेड़ों से भरा था जमा होकर दल बांध लिया था और लोग फिलिस्तियों के आगे से भाग गए, लेकिन उसने उस कता की बीच में खड़ा होकर उसको बचाया और फिलिस्तियों को कत्ल किया और खुदा ने बड़ी फतह कराई। एक जगह पर इस्राएल की कौम और वो सारे बोझदिल, सारे भागने वाले और छुपने वाले, और एक अकेला सम्मा वो खड़ा हुआ और अपने उस खेत को जो मसूर का खेत है उसके लिए वो खड़ा हो गया। उसने कहा मैं भागने वाला नहीं। उसके साथ के लोग भाग गए लेकिन वो खड़ा हुआ। हम यहां पर एक बड़े तजाद को देखते हैं। पूरी इस्राएली कौम खौफजदा है, अपने दुश्मनों के सामने भाग गई है। जब भी उन्हें धमकी मिली और उनके सामने उनके दुश्मन जो ही इकट्ठे होना शुरू हो गए, उन्होंने सफे बांधना शुरू कर दी और वो सारे भागे। और यहां पर भी उसके साथ के लोग ही यहां पर भी भागे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे लोग खड़े होने वाले नहीं होते। जंग करने वाले, लड़ने वाले और अपनी टेरिटरी को जिन्होंने मार्क किया होता ईमान के साथ, उसके लिए लड़ने और खड़े होने वाले लोग बहुत कम होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी बिलोंगिंग का, अपनी बरकत का, अपनी जिंदगी का, अपने घराने का, अपने बीवी बच्चों का, अपने चर्च का, चीजों का पता ही नहीं होता कि उसकी वैल्यू क्या है। इस शख्स ने, अगर मैं कहता हूं कि गंदम मंडी का कोई बंदा होता तो वो कहता समा तू क्या कर रहा है, ये मसलों की कितनी प्राइस होगी, और इसके लिए तू फिलिस्तियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया, मरने के लिए तैयार हो गया, तेरी निगाह के अंदर उसकी क्या वैल्यू है। लेकिन सम्मा ने अपना एक जहन बना लिया था, कौन इस चीज को डोमिनेट करेगा, कौन इस चीज का तयन करेगा कि यह चीज कितनी वैल्यूएबल है। बनी इस्राइल के सामने उनकी फसलें शायद इतनी वैल्यूएबल नहीं थी, वो उनकी निगाह के अंदर इतनी वर्थ नहीं थी, इसलिए वो उसको छोड़कर भाग जाते थे। लेकिन सम्मा की कुछ और तबीयत है। सम्मा ने सोच लिया हुआ था कि ये फसल और ये कता मेरी निगाह के अंदर कीमती है, ये इस वर्थ है, ये इस काबिल है कि इसके लिए मैं खड़ा हो जाऊं और मैं फिलिस्तीनियों का मुकाबला करूं और उनके साथ लड़ूं, चाहे मेरी जान चली जाए। लेकिन चूंकि ये उसने सोचा हुआ था, ये उसकी निगाह के अंदर था कि ये चीज इतनी कीमती है या नहीं है। जहां पर उसके दूसरे साथी भाग गए, मंतक तो यही कहती है, लॉजिक तो यही कहती है कि उसे भी भाग जाना चाहिए था, और कहता कोई बात नहीं, अगर आज हम बच गए कल लड़ाई कर लेंगे। लेकिन उसने कहा कल का पता नहीं है, आज जब मेरे दुश्मन इकट्ठे होके आ गए हैं, जब उन्होंने दल बांध लिया है, सारे भागे भाग जाएं, लेकिन मैं यहां पर खड़ा रहूंगा और अपनी इस जमीन को बचाऊंगा। मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल, उनकी खुराक को मैं बचाऊंगा। और वो खड़ा हुआ और उसके साथी भाग गए। अकेला शख्स, उसके पास कोई मैसेज नहीं था। जैसे अक्सर दाऊद के पास मैसेज होता, खुदा से पूछता क्या मैं फिलिस्तीनियों के साथ जंग करने के लिए जाऊं और क्या तू हमें फतह दे देगा, क्या हम उसको मार लेंगे। तो खुदा कहता जा मैं तुझे इसके पास कोई मैसेज नहीं था। इसके पास क्या था? इसके पास एक ईमान था। इसके पास उस जगह की वैल्यू थी इसके जहन के अंदर कि इसकी कीमत क्या है, उसकी निगाह के अंदर उसकी वैल्यू क्या है इस जगह की। इसलिए वो खड़ा हो गया और उसने मुकाबला किया। वहां फिलिस्तीनियों के जो लोग आए थे, लिखा है कि दल है, दल में कितने लोग थे? 20 थे या 100, और एक अकेला शख्स।
एक अकेला शख्स, अगर हम पीछे क़ज़ात की किताब के अंदर जाएं, बनी इसराइल की कौम है, फसलें तैयार हैं, हर एक ने अपनी अपनी फसल, अपना अपना बीज बोया है, पानी लगाया है, सारा सब कुछ नशोनुमा की है, और जब काटने का वक्त आया है तो मद्यानी और अमालेकी आगे हैं और वो उनको तबाह कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं है कि जो उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटे से खेत के लिए, वो भी मसूर के खेत के लिए, एक शख्स खड़ा हो गया और उसने कहा, मैं भागने वाला, मैं यहां पर खड़ा हूंगा, मैं अपनी इस जगह को, इस कथा को बचाऊंगा। आज आप ईमानदार कहें कि मैं भी भागने वाला नहीं हूं। अब शाउट करें, मैं भागने वाला नहीं हूं। बहुत सारे लोग भाग जाते हैं जब प्रेशर आता है, जब मुश्किल आती है, जब थ्रेट आते हैं तो वो भाग जाते हैं। और मैं स्पिरिचुअली बात करता हूं, यहां पर जिस्मानी बात है। इवन आप रूहानी थ्रेट के अंदर होते हैं, लोग भाग जाते हैं, छोड़ देते, दुआ करना छोड़ देते हैं। वजह क्यों? क्योंकि थ्रेट मिल रहा होता है, इब्लीस घेरा तंग कर रहा होता है और भाग जाते हैं। यहां पर खुदा का बंदा सम्मा, क्यों 2 वर्सेस में उसकी बात की गई है, लेकिन ये कितना अहम बात थी, क्योंकि इस शख्स ने कुछ अजीब किया है। इस शख्स ने उस कता जमीन की, उसने अपनी निगाह के अंदर एक वैल्यू बनाई हुई है। मुझे नहीं पता आप किस चीज को वैल्यू देते हैं, आपके लिए कौन सी चीज वर्थ है, किसकी बहुत ज्यादा कीमत है, जिसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार हो जाए। हो सकता है वो आपकी बेटी हो सकता है वो आपका बेटा हो सकता है ये आपकी मैरिज लाइफ हो सकता है ये आपका हस्बैंड हो, जो इब्लीस किसी तौर से आपसे वो छीनना चाहता हो। तो क्या आप उसे छीनने देंगे? क्या आप वो इस्राएली हैं जिन्होंने खोए बनाई हुई हैं, जो घरों के अंदर जाके छुप जाएंगे? या फिर आप सम्मा की तरह हैं, अपनी जगह के ऊपर अपने पांव पे खड़े होंगे और कहेंगे, ए फिलिस्तियों, हम तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर इंटर नहीं होने देंगे। हालेलुया। आपको समझ आ रही मेरी बात की? वो उस कता जमीन पर अकेला खड़ा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका एक मसूर का खेत हो, क्या आप अपनी जान खतरे में डालेंगे? हेलो, सोच सकते हैं। वो उसने कुछ सोचा होगा, लेकिन उसने ज़हन बना लिया कि ये कता, ये मसूर का खेत मेरे लिए वैल्यूएबल है। उसने उसकी वर्थ निकाल ली। लोगों की निगाह के अंदर शायद वो इतना वर्थ वाली चीज नहीं थी, इतनी काबिल नहीं थी। क्यों? उसकी कोई शायद उनकी निगाह के अंदर, हो सकता है लोगों की निगाह के अंदर कुछ चीजें इतनी वैल्यूएबल नहीं होती जो आपकी निगाह के अंदर है। आपकी निगाह के अंदर आपकी पकीज़गी वैल्यूएबल है, जो दूसरों की निगाह के अंदर नहीं है। आपकी निगाह के अंदर दुआ का एक वक्त आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके लिए वर्थ रखता है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ नहीं है। एक की निगाह के अंदर खुदा की हजूरी में चर्च जाना वर्थ रखता है, और एक की निगाह के अंदर शॉपिंग हॉल के माल के अंदर जाना वो वर्थ रखता है। ये तयन किसने करना है? ये आपने करना है। और ये तयन जो है वो सम्मा ने किया कि मैं इस खेत के लिए, इस मसूर के खेत के लिए मैं खड़ा हूंगा और मैं लड़ूंगा, मरने तक लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। ये उसका ईमान था, और इस ईमान के साथ वो खड़ा हो गया। सो फैसला उसने किया। गो के उस वक्त के लोग सोचते होंगे कि ये क्या कर, उसके दोस्त कहते होंगे कि एक खेत की, क्या फिलिस्ती उस खेत को उठा के ले जाएंगे? क्या वो जमीन के उस कता को उठा के ले जाएंगे? वो नहीं उठा के लेके जा सकते। क्या सिर्फ फसल कितनी कीमती है, जो कुछ आप बो रहे हैं, आज अपने बच्चों को आप फीड कर रहे हैं, आप एक बड़ी फसल तैयार कर रहे हैं। क्या आप इस बात को कबूल कर लेंगे कि जब ये जवान हो, जब ये कुछ करने के काबिल हो, जब खुदा के लिए इस्तेमाल करने के काबिल हो, और इब्लीस आए और उनकी लाइफ को रियून करके चला जाए? आप कभी भी नहीं चाहेंगे आपका भाई या आपकी बहन उसको इब्लीस अपने कंट्रोल में कर ले और उसे किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करे। क्या आप चाहेंगे? आप कभी नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो वैल्यूएबल है, आपके लिए वो इस काबिल है कि आप उसके लिए लड़ मरे,
आप खड़े हो जाएं। और सम्मा की निगाह के अंदर भी कुछ ऐसा था, जो लोग भाग गए थे, जो लोग उसके साथ खड़े नहीं हुए लड़ने के लिए, उनकी निगाह में उसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन जिसकी निगाह के अंदर वैल्यू थी वो स्टिल अकेला खड़ा था। उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो खड़ा था। एक चीज थी जिसने सम्मा को उस कता जमीन के दरमियान, अपने दुश्मनों के दरमियान खड़ा रखा, और उसे यकीन था यह खेत इस काबिल है कि इसके लिए लड़ते हुए मर जाऊं, क्योंकि उसका यकीन था कि यह काबिल है। आपका क्या यकीन है? आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका चर्च, आपके लोग, आपकी पकीजगी, आपकी वो तालीम जिस पर आप कंप्रोमाइज नहीं करते, आप दर दर नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है मेरी ब्लेसिंग कहां है। आप अपनी ब्लेसिंग के साथ जुड़ जाते हैं और उसके लिए आप खड़े हो जाते हैं, चाहे आपको कितना थ्रेट क्यों ना मिल रहा हो। आपको पता है कुछ देर पहले हमने अपनी बरकत के लिए एक जंग लड़ी है, और मैं उन लोगों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं जो आज भी खड़े हैं, और वो जीसस फैमिली रिवाइवल चर्च है, वो लोग हैं जो उस वक्त भी खड़े रहे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी बरकत यहां पर है। हालेलुया। वो अपनी जगह पर खड़े हुए, उन्होंने भागने का कोई भी इरादा नहीं किया, और वो आज यहां पर मौजूद हैं। मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि वो जानते थे, उनको वैल्यू का पता है। वो समझते थे ये काबिल है, ये जगह काबिल है, ये लोग इस काबिल हैं कि इनके साथ खड़ा हुआ जाए, क्योंकि उन्होंने खुद से अपने ज़हन, उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया, उन्होंने खुद से अंदाजा किया, उन्होंने खुद से ज़हन बनाया, मैं नहीं भागूंगा। बहुत सारे बड़े करीबी लोग थे, वो भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उन्हें वैल्यू का नहीं पता था। उन्होंने नहीं समझा था कि ये चीज इस काबिल है, ये लोग इस काबिल हैं, ये नाम इस काबिल है, ये चर्च इस काबिल है, और इस वजह से वो चले गए, वो भाग गए। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि आपने पहचान लिया, आप सम्मा हो। आप वो बहुत सारे इस्राएल, उन्होंने अपनी खोए मांग ली, उन्होंने अपनी गारों में छुप गए, वो अपने ऐसे कलों के अंदर छुप गए हैं, लेकिन वो आज आपको नजर नहीं आएंगे, कहीं पर नजर नहीं आएंगे, खिदमत के अंदर नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जिस वक्त खड़ा होने का वक्त था, जब लड़ने का वक्त था, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आप अपने आप से आप पूछें कि आप किस चीज के लिए लड़ने को तैयार हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो इतनी कीमती है कि आप उसे बचाने के लिए अपनी लाइफ वक्फ कर सकते हैं? क्या आपका शोहर आपके लिए कीमती है कि आप उसे बचाएं और उसके साथ उसके लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाएं? क्या आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी खिदमत, आपके गिफ्ट इस काबिल हैं कि आप खड़े हो जाएं? और आप चीजों की कीमत किसी और ने नहीं लगानी, आपने खुद लगानी है। आप उसे कितना काबिल समझते हैं? आपकी निगाह के अंदर ये चीजें कितनी वर्थ रखती हैं? क्या आपके लिए कोई ऐसा शख्स जो बीमार हो और वो शिफा पाए वैल्यूएबल है? मैं अक्सर रात के वक्त फोन आ जाता है 2 बजे 3 बजे दुआ करने के लिए, पास्टर दुआ करें। लोगों को पता नहीं होता टाइम का बाहर से, तो क्यों हम उठ जाते हैं और दुआ करना शुरू कर दें? क्योंकि हमारी निगाह के अंदर वो वैल्यूएबल है कि कोई शख्स अगर बदरू गिरफ्ता है तो वो आजाद हो जाए। अगर कोई बीमार है, अपने स्ट्रेस के अंदर है, अपने मुश्किल वक्त के अंदर है, हम इसके साथ खड़े होकर दुआ करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। और ये मेरे लिए वैल्यूएबल है इससे ज्यादा कि मैं सो जाऊं, मैं खराटे लूं, मैं अपनी नींद को जो है वो ज्यादा पसंद करूं। मैं ये पसंद करूंगा कि किसी की जान बच जाए। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना, उनके लिए यह वैल्यूएबल था कि वो उस जन्म के लंगड़े के लिए वो खड़े होते और उनको यस्सु देते, बजाय इसके को जा सकते थे अपनी इबादत पर, अपने दूसरे काम पर। लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनकी निगाह के अंदर वो लंगड़ा शख्स एक कीमती शख्स था, वो एक कीमती रूह थी। क्या हमारे इर्द गिर्द रूहें तबाह हो रही हैं और क्या हमें उसकी फिक्र है? क्या हमारी निगाह के अंदर उनकी वैल्यू है कोई? क्या हम उनको कुछ उनकी कदर कर रहे हैं, या फिर हम अपने काम के अंदर लगे हुए हैं? क्या आपका ईमान, आपका अकीदा, आपका नजरिया, आपकी डॉक्ट्रिन जो बाइबल के मुताबिक है, क्या वो इस वर्थ है, क्या वो इस वैल्यू रखती है कि आप उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाए और लड़े? जैसा आपने लड़ते हुए देखा उस वक्त जब हमने बात करना शुरू की तो बहुत सारे पास सब आप क्यों बात की है? आपको नहीं करनी चाहिए थी।
भाई मैं वो इसराइली हूं जब भाग जाऊं। अगर आज मैं नहीं बात करूंगा तो मेरे पीछे खड़े हुए लोग जो हैं वो कहेंगे कि ये डरपोक है, ये बोझदिल शख्स है। अगर आप नहीं खड़े होगे, आपके बच्चे आपको कहेंगे कि मेरा बाप, मेरी मां मेरे लिए दुआ के लिए नहीं खड़ी हुई, वो मेरे साथ नहीं खड़ी हुई, मुझे बचाने के लिए उसने रोजे नहीं रखे, वो कैसे आपके ऊपर इत्बार करेंगे? और जब आपको पता हो कि आपके खिलाफ इब्लीस थ्रेट लेके आ रहा है तो फिर भागने की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूं कि मसीह के किसी भी शख्स को, उसके खादम को भागने की जरूरत नहीं है, उसको खड़े होने की जरूरत है, उसे लड़ने की जरूरत है, ताकि उसके सामने से इब्लीस की तस्वीरें जो है वो पीछे हटें। सो क्या हम अपनी कलीसियों के अंदर खुदा रूल कुदस की कुदरत, उसके ताकत के बहाव और उसके जलाली कामों को करने के लिए और चाहते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन आपकी कलीसिया के अंदर हो, उसके लिए आप लड़ने के लिए क्या तैयार होते हैं, आप खड़े होते हैं? यकीन जाने आपका कलीसिया के अंदर एक बार हालेलुया कहना, किसी बात के ऊपर आमीन कहना, आपका हाथ उठा के प्रस्तुत करना, कोई भी चीज इब्लीस को थ्रेट कर रहा होता है, और जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो यकीन जाने आप लड़ रहे होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो आप जब खुदा की हजूरी के अंदर हैं तो इसका मतलब है आपने कुछ वैल्यू दी है। आपकी निगाह के अंदर खुदा की हजूरी में आना, वर्शिप करना। इवन सम टाइम मैं देखता हूं कि लोगों की गाड़ियां छूट जाती हैं, वो टैक्सी लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि उनकी निगाह के अंदर वैल्यू पैसे की नहीं है, खुदा की हजूरी की अंदर है। क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे लिए जो है ये काबिल कबूल चीज है, ये मेरे लिए इस बात के लिए काबिल है कि मैं ऐसा करूं। और कुछ लोग कहते हैं अच्छा ठीक है गाड़ी चली गई, अब मैंने नहीं जाना, मैं ये बैठा हूं, क्योंकि उनकी निगाह के अंदर वो वैल्यूएबल नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये मैंने और आपने तयन करना है कि हमारी निगाह के अंदर जो है कौन सी चीज जो है वो इस काबिल है कि उसके लिए खड़ा हुआ जाए और उसके लिए लड़ा जाए। चर्च आज बड़े पैमाने के ऊपर बहुत सॉफ्ट है, बड़ा नरम हो गया है, क्योंकि हमारे पास ऐसे हकीकी जंगजू लोगों की कमी है जो गुनाह को गुनाह कहें। बहुत सारे लोग ये तो प्रीच करते हैं कि चर्च एक फरदौस है, एक जहन्नम है, जहन्नम की तरीके की कुव्वतों से लड़ना जो है वो नहीं सिखाया जाता कि हमने इनके साथ लड़ना कैसे है, क्योंकि हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज सम्मा से आज सीख लें कि उसने एक कता जमीन के लिए वो खड़ा हो गया और वो लड़ा, और ऐसा नहीं है कि उसने शिकस्त खाई। कलाम कहता है कि खुदा ने उसे बहुत फतह कराई, खुदा के वसीला, क्योंकि वो ईमान पे खड़ा हो गया, वो अपनी खेत के लिए वो खड़ा हो गया, और खुदा ने उसकी मदद सुपर नेचुरल तौर पर उसकी मदद की। और जो अपनी मदद नहीं करते उनकी खुदा भी मदद नहीं करता। बनी इस्राइल कितने लोग थे? भाग जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपना एक कंफर्ट जोन रखा हुआ था। भाग जाओ, खो है ना, गार है ना, एक कला है ना जो खुद का बनाया हुआ है। हम उस कले की बात करने हैं जिसके अंदर जगह आप जाकर छुप जाते हैं तो हमें खुदा की कुम्मक आती है, उसकी अलग बात है। लेकिन जो हमने अपने कले बनाए हुए हैं उन जाके छुप जाते हैं और कहते हैं ये वक्त गुजरने देगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आज याद रखिएगा, आज कुछ आपकी जिंदगी के अंदर कुछ अजीब और बड़ा होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया आपका वर्शिप करना, आपका हालेलुया करना, आपका तरीके की कुव्वतों के खिलाफ मुंह खोलना, आपका दुआ करना, एक्चुअली वो चैलेंज कर रहा होता है इब्लीस को। आपके हाथ से निकला हुआ 1 रुपया, एक आपका पैसा बहुतों की निजात और मखलसी और अंजील की मुनादी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि आपकी निगाह के अंदर वो वर्थ है, वो काबिल है कि आप खुदा की बादशाह को वुसअत देने के लिए आप अपने रुपए पैसे को इस्तेमाल कर सके। किसी की निगाह के अंदर वो ऐसे वर्थ नहीं है। उसके लिए शायद उसके कपड़े, उसका खाना, उसकी होटलिंग और चीजें वो ज्यादा कीमती हैं, और किसी के लिए खुदा का काम, खुदा की मनादी का काम जो है वो वर्थ रखता है। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि कब तक और कितना सम्मा ने सोचा होगा, लेकिन उसने ज़हन बना लिया था कि इस छोटे से मसूर के खेत के लिए वो लड़ेगा, क्योंकि वो खेत उसको वो समझता था कि वो इस काबिल है, वो इस वैल्यू रखता है कि उसके लिए लड़ा जाए। अगर आपने ज़हन बना लिया हुआ है कि आप लड़ेंगे तरीके की उस कुव्वत के खिलाफ जो आपके खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, आपके खानदान के खिलाफ है, यकीन जाने मदद आसमान से आएगी। हालेलुया, हालेलुया,
मदद आसमान से आएगी। उन लोगों के लिए मदद जारी है जो उसके लिए खड़े हो जाते हैं और उसके काम के लिए खड़े हो जाते हैं। चर्च, आज बहुत सारे लोगों ने अपना ज़हन नहीं बनाया कि हम खुदा के लिए, रूहों की निजात के लिए, मखलसी के लिए, छुटकारे के लिए लड़ें, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में छुपे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को वैल्यू नहीं दी। उनकी निगाह में उसके खेत के अंदर काम करना, रूहों को सेव करना, बचाना, उनके लिए वो तैयार नहीं है। चर्च, आप कलीसिया के अंदर आपने वर्शिप करनी है और आपने खुदा के नाम को जलाल देना है, और जो आप जलाल देंगे आप अगले लेवल के ऊपर जो है प्रमोट किए जाएंगे। आज सम्मा को क्यों डिस्कस किया जा रहा है? सम्मा को इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि उसने अपने खेत को बचाने के लिए, अपने फील्ड को बचाने के लिए उसने अपनी बाजी, जान की बाजी लगा दी। वो खड़ा हुआ क्योंकि उसकी निगाह के अंदर उसका खेत जो था वो बड़ा ही वैल्यूएबल था। सम्मा ने इरादा कर लिया था कि लड़ते लड़ते मर जाऊंगा लेकिन अपनी जगह को नहीं छोड़ूंगा, मैं हारूंगा नहीं। इसलिए एक बार फिर से चर्च कहे कि मैं भागने वाला आमीन। अपनी बरकत, अपनी बिलोंगिंग, अपने गिफ्ट्स, अपनी तालीम, क्योंकि कलाम कहता है, पौलुस रसूल ने कहा अपनी तालीम की खबरगिरी कर। लोगों को नहीं पता, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह वो मूव करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मेरी तालीम जो ओरिजिनेट बाइबल से है वो कहां पर है, मेरी बरकत कहां पर है, मेरे लिए बरकत के वसाइल कहां पर है। क्योंकि चूंकि उनको ये नहीं पता, बनी इस्राएल को एक्चुअली ये पता ही नहीं था कि जो कुछ उन्होंने फसल बोई हुई है, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की हुई है, और अब ये फसल काटने का वक्त है, अपने घर संभालने का वक्त है, तो एक कौम आती है, 3 कौमें हैं, अमालेकी आते हैं, मदियानी आते हैं, अहले मशरक के लोग आते हैं, वो लूट के चले जाते हैं, और उनको इस बात की लगता है कि परवाह नहीं है। जरूर वो रोते होंगे कि ये हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन उनमें से कोई नहीं था जो वो खड़ा होता। दाऊद की निगाह के अंदर उसकी भेड़ें और उन भेड़ों के बच्चे जो थे उनकी वर्थ थी, वो दाऊद उनके लिए लड़ता है। ये दाऊद उनके लिए, उसने वैल्यू उनके लिए सेट की हुई है। उन भेड़ों को वो इस काबिल समझता है कि अगर कोई भेड़ का बच्चा, कोई बर्रा खूंखार शेर और रीछ जो है उसे ले आने के लिए, ले जाने के लिए आए, तो वो उससे लड़ पड़ता था, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर, क्योंकि भेड़ और भेड़ का बच्चा उसकी निगाह के अंदर काबिल था, वो इस वर्थ रखता था। इसलिए सैमुअल 17 उसकी 4 आयत में लिखा है, तब दाऊद ने शाऊल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियों में चराता था, और जब कोई शेर या रीछ आकर झुंड में कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे जाकर उसको मारता और उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। क्यों? वो अपनी जान खतरे में डालता था। क्यों? इसलिए कि उसकी निगाह के अंदर एक बकरी का बच्चा, एक भेड़ का बच्चा, एक बर्रा जो है वो वैल्यू रखता था। ये उसने अपने जहन को समझा लिया था कि मेरी बिलोंगिंग के साथ, मेरी बरकत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर कोई मेरी बरकत के साथ छेड़छाड़ करेगा तो मैं खड़ा हूंगा, मैं चाहे अकेला खड़ा हूं, लेकिन मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। मैं उसके साथ खड़ा लड़ूंगा, और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं जीत ना चाहूं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग, उन्हें अपनी बरकत का पता नहीं है, इसलिए इब्लीस आता है, चुराता, मारता, डालता और वो हलाक करता, लेकिन उसको समझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी खो और अपनी गारें बना रखी हैं। वो उन्होंने अपने कंफर्ट जोन, ऐसे कले बना रखे हैं जहां पर वो जाकर आराम करते हैं। दाऊद की निगाह में बर्रा, भेड़ के बच्चे वर्थ थी, वो उसकी निगाह के अंदर वो बड़े कीमती थे, इसलिए वो लड़ता था, वो अपनी जान खतरे में डालता था। उसकी निगाह में एक बर्रा की वैल्यू थी, जिसकी जान वो अपनी जान को खतरे में डालता था। और अब हम अपने खुदावंद यीशु अल मसीह की बात करता हूं, जो अल्फा ओमेगा है, जो जिंदा और मुर्दों का मुनसफ़े आला, आज़म मुअल्लम, अखलाक का पैकर, हकीम इंसानियत, गरीब परवर, हादी और बरहक, अपने और बड़े बड़े प्राओं का गम खाने वाला, कायनात का मलूद अव्वल, आलमगीर नमूना इंसानियत, खुदाए कदूस की जात का नक्श, वजह तखलीक कायनात, अंगुश्त नमाई नमा के हर दाग से मबर्रा, अजज़ और अनकसारी का अजीम शाहकार, खुदा के जलाल का परथो, कामल पेशवा, नमूना तकलीफ
खलीद मंबा रुश्ता हदायत इल्म दानिश का बहर ज़खायर, हम ये बेकसा अज़ल से ज़बा किया बर्रा मुश्किल कुशा और दो जहां का मालिक शाह अजीम सरा पापाकीज़गी अजीम तरीन मरब्बी मुअल्लिम इंसानियत कामिल इंसान शाह दो जहान आदम सानी इब्ने आदम इब्ने खुदा इब्ने दाऊद सुना सलामती का शहजादा कलाम मुजस्सम कोने के सिरे का पत्थर बेड़ों का अजीम गलाबान जो अपनी बेड़ों के लिए अपनी जान देता है, एक अच्छा चरवाहा है, वो फाते सलीब है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई। उसने कहा ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक रहा कहां रहा। ये मौत और कब्र पर फतह ऐसे नहीं बल्कि उसने लड़के पाई। हालेलुया, उसने ये मौत पर कब्र पर फतह लड़के पाई है। अगर कोई ये समझता है कि वो खुदा था इसलिए वो खुदा भी था और कामिल इंसान था और कामिल इंसान होते हुए लड़ा, वो बागे गतसमनी से लेकर गलगत्ता के मकाम पर कोई कलवरी तक वो लड़ा। जब आप ज़बूर 22 को पढ़ते हैं, आपको पता है कि ज़बूर 22 जो है वो नबूवती तौर पर खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत की अक्कासी करता है। वो जो भेड़ों का सरदार गलाबान है, उसकी निगाह के अंदर एक एक भेड़ कीमती है, इसलिए उसने तमसील में कहा कि वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाने वाला खुदा है। हालेलुया, इसने उस हमारी भेड़ों की उसने फिक्र की, उसने अपनी उस फील्ड के अंदर किसी और को इंटर नहीं होने दिया और वो खड़ा हुआ। वो गतसमनी बाग से लेकर वो गलगत्ता के मकाम तक वो डटा रहा, वो खड़ा रहा और उसके खिलाफ तरीके की कुव्वतें काम कर रही थी, वो लड़ रही थी और वो लड़ रहा था। ज़बूर नवीस कहता है 22 बाब और उसकी 12 आयत के अंदर लिखा है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसन के जोर और सांड मुझे घेरे हुए हैं, वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारते हैं। ये सांड ये शेर बब्बर वहां पर तो नहीं थे जब सलीब थी, लेकिन ये तरीकी की कुव्वतें थी, ये बदरूहें थी, ये उस वक्त अबलीसी कुव्वतें थी जो उसे रोकना चाहती थी और वो लड़ रहा था, वो खड़ा था और वो डटा हुआ था। वो अकेला तने तनहा, उसके सारे शिगिर्द उसे छोड़ के चले गए, लेकिन वो अकेला अपनी फील्ड के अंदर वो खड़ा हुआ, क्योंकि उसे आपकी फिक्र थी, उसे आप जो उसकी खेती है, आप उसकी इमारत का कलाम कहता है कि तुम उसकी इमारत हो, तुम उसकी खेती हो। उसे अपने खेत के लिए वो खड़ा हुआ और वो लड़ा, तब तक लड़ा जब तक उसने अबलीस को जो है वो शिकस्त नहीं। इसलिए कुल्सियों के नाम पलूस रसूल का खत में लिखा हुआ है, कुल्सियों 2 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, उसने हुकूमतों और अख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। पता है बरमला तमाशा क्या होता है? खुलेआम ये लड़ाई के बाद होता है। ये किसी भी फौज जब दूसरी फौज को शिकस्त देती, उसके बादशाह को लेती, उसके वजीरों को पकड़ती, उनको वो घसीटते, वो उनको जलील करते, क्योंकि वो जीते होते थे। यीशु ने उनका बरमला तमाशा ऐसे नहीं, लड़के खड़े होकर अकेला तने तनहा वो खड़ा हुआ आपकी और मेरी निजात के लिए, मुझे और आपको सेव करने के लिए, बनी इंसान को सेव करने के लिए वो अकेला लड़ा, क्योंकि और जब वो लड़ा और वो जीता। हालेलुया। सम्मा को आज पढ़े और इसके बाद अब यीशु को देखें। सम्मा एक खेत के लिए खड़ा था, सम्मा एक खेत के लिए लड़ा, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ा, वो अपने खाने पीने के लिए, अपने रुपए पैसे के लिए, अपनी माशियात के लिए, वो अपनी बिलोंगिंग के लिए वो खड़ा और लड़ा और जीता। और यीशु मेरे और आपकी निजात के लिए, क्योंकि वो ही है जो सच्चा और बड़ा गलाबान है, वो भेड़ों का गलाबान है जो सच्चा है। उसने अपनी जान दे दी लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उस वक्त रोमी सिपाही, रोमी पॉलिटिकल सारे लोग, उस वक्त के मजहबी ठेकेदार और उसके बढ़कर तरीके की कुव्वतें, अगर जिन्होंने लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा है उन्होंने देखा होगा कि वहां पर कुछ चीजें थी जो मूव कर रही थी। बड़ा अच्छी कासी की है किसी ने। एक्चुअली वो जंगली सांड, वो बसन के सांड, वो शेर बब्बर उसके खिलाफ एक जंग के अंदर थे और वो एक रूहानी कुव्वतों के साथ ना दीदनी कुव्वतों के खिलाफ लड़ रहा था। और वो लड़ा किस लिए? वो अपनी भेड़ों के लिए, वो अपने खेत के लिए,
وہ میرے اور آپ کے لیے کلام کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ کسی کی ہلاک کرنا نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور وہ بچانے کے لیے لڑا, وہ کھڑا ہوا. یسوع کا کھیت میں اور آپ ہیں, یہ دنیا کے لوگ ہیں جس کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹا. اس نے حکومت والوں, اختیار والوں, دنیا کی طریقے کی قوتوں, اس نے حاکموں, شرارت کی روحانی فوجوں جو آسمانی مقاموں ہیں ان کے خلاف وہ لڑا, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کھیت کے اوپر قبضہ ہو. پولس رسول کہتا تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو. یسوع نے اپنی چھان دی, فتح حاصل کی اور کیلا لڑا اور فتح حاصل کی. آج آپ کے لیے کھیت کون ہے؟ اب سوال میں آپ کے چھوڑنے جا رہا ہوں. آپ کے لیے وہ کھیت کون سا ہے جس کو آپ ویلیو دیتے ہیں, جو آپ کی نگاہ کے اندر اتنا ویلیوبل ہے, اتنا قابل ہے کہ آپ اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر اس سے پہلے نہیں پتا, آج پاک روح سے کہیں اپنے کھیت کی نشاندہی کریں, اس کی ویلیو خود سے لگائیں, اس کی ویلیو خود سے لگائیں کہ کیا یہ شخص, یہ بیٹا, یہ بیٹی, یہ کلیسیا, یہ میری دوست, میرا بھائی, کوئی ایسا شخص, میری تعلیم, میری پاکیزگی, کون سی چیز ہے جو میرے لیے اتنی ویلیبل ہے؟ آج اپنی ٹیریٹری کو مارک کرنا شروع کر دیں. اگر اس سے پہلے آپ نے اپنی ٹیریٹری کو نہیں سمجھتے, لوگ دوسرے بنی اسرائیل اپنی ٹیریٹری کو بھول چکے تھے, وہ اپنی حدود, اپنے کھیتوں کی ان کو قدر نہیں تھی, لیکن اس شخص نے, سما نے قدر کرا دی. اس نے ایک مسحور کے کھیت کی ایک دال کے لیے وہ کھڑا ہو گیا اور وہ فلسطینیوں کے ساتھ لڑا اور ان کے ساتھ ایسا لڑا کہ ان کو شکست دی. وہ چاہے وہ 100 لوگ تھے, اس کے سامنے بھاگنا پڑا کیونکہ اس کا ارادہ, اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا. وہ لڑنے کے لیے, مرنے کے لیے. اگر آپ اپنی بلونگنگ کے لیے, اپنے گھرانے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اگر آپ لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, یقین جانیں ابلیس آپ سے شکست کھائے گا. ہاللیلویا. لیکن آج لڑنے والے سنجیدہ لوگوں کی کمی ہے, کیونکہ موسٹلی لوگ غاروں میں, انہوں نے اپنی غاریں, انہوں نے اپنے کھو بنا رکھی ہیں, انہوں نے اپنے کمفرٹ زون کے اندر کلے بنا رکھے ہیں جہاں آسانی کے ساتھ وہ جا کے بیٹھ جائیں. اور ابلیس جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے ان کی لائف کے اندر, ان کے بچوں کی لائف میں, ان کے روپے پیسے کے ساتھ, ان کے گھرانوں کے ساتھ وہ کرتا ہے اور ان کو فکر نہیں ہے. لیکن سما سے آج ہم نے کچھ سیکھا اور اس سے بڑھ کر ہم نے اپنے خداوند یسوع المسیح سے سیکھا ہے. ہاللیلویا. اس نے ہمارے لیے وہ لڑا, ہمارے لیے وہ کھڑا ہوا اور اس نے ہماری نجات کے لیے, کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی نگاہ کے اندر قیمتی تھے. ہاللیلویا. یہ اس نے قیمت ٹھہرا لی تھی اور اس کی اسے پتا تھا کہ مجھے اپنی جان دینی پڑے گی, کیونکہ ایک دنیا کے اندر ایک سب سے جو قیمتی چیز ہے نا, جو خدا کی رہی ہوئی ہے, وہ پتہ کیا ہے؟ وہ میں اور آپ ہوں, کلیسیا ہے. کیوں؟ اس نے اپنے بیٹے کا لہو بہایا ہے, اس نے جان دیا. دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز قیمتی نہیں ہے جو خدا کی نگاہ کے اندر. اگر اس دنیا کے اندر کوئی چیز جو خدا کی نگاہ کے اندر ہے تو وہ صرف اور صرف کلیسیا ہے. اور کیا کلیسیا جانتی ہے کہ اس کی نگاہ کے اندر کون سی چیز قیمتی ہے؟ ہاللیلویا. وہ اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے, وہ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ یہ ابلیس کے ہاتھ مارے جائیں, وہ ابلیس کے ہاتھوں چھوڑنا نہیں چاہتا. اس لیے صلیب پر وہ لڑا. آپ کی نگاہ میں آپ کے چرچ کی کیا ورتھ ہے؟ آپ کی نگاہ کے اندر آپ کے خادموں کی کیا ورتھ ہے؟ آپ کی نگاہ کے اندر جس جگہ پر فیلوشپ رکھتے ہیں اس کی کیا ورتھ ہے؟ یاد رکھیے گا, اگر آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے برکت کے لیے نہ کھڑے ہوئے تو یقین جانیں ان اسرائیلیوں کی طرح ہوگا جہاں پر میں سمجھ ہی نہیں ہوگی کہ کیا یہ واقعی اس چیز اس قابل تھی کہ میں اس کے لیے کچھ کرتا, کیا اس قابل تھی کہ میں جو تعلیم میں نے پائی ہوئی ہے اس پر میں کھڑا ہوتا, جو میں نے سیکھا, جو رسولوں کی نیو کے اوپر ہم کھڑے ہیں, کیا ہم وہی اس تعلیم کو مان رہے ہیں؟ کیا اس کو اپنی لائف کے اندر فالو کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ورتھ ہے کہ ہم اس کو کتنا قیمتی سمجھتے ہیں. اگر ہم اس کی ورتھ کو نہیں سمجھیں گے ہم اپنی اس برکت کو نہیں پائیں گے. یعقوب کی نگاہ کے اندر اس کی جو برکت تھی وہ اس کی ورتھ تھی. وہ اتنی قابل تھی کہ وہ ساری رات کشتی کرتا رہا, وہ لڑتا رہا,
अपनी बरकत के लिए, क्योंकि वो जानता था कि बरकत के बगैर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। वो जानता था कि बरकत के बगैर मैं लानत के नीचे रहूंगा, और अगर हम लानत के नीचे हैं और हमें समझ नहीं है कि हमने क्या करना है, तो आज रूल कुदस को कहे मेरी मदद कर और मुझे मेरी मदद कर, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी वर्थ क्या है, मेरे लिए कीमती क्या है, कौन सी चीज है जो काबिल है। क्या वो मेरी खिदमत, क्या वो मेरी तालीम, क्या वो मेरी वो डॉक्ट्रिन, क्या वो मेरा चर्च, क्या मेरा बाप, क्या मेरी मां, क्या वो लोग जो मौत की राह पे चल रहे हैं, जो मरने के लिए जा रहे हैं और इब्लीस उनको मार रहा है, क्या वो मेरे लिए कीमती है या नहीं है। शायद लोगों की निगाह के अंदर नहीं है। जो खिदमत करते हैं उनको पता है कि एक एक रूह की क्या कीमत है। जॉन हाइड कहता है, वो कहता है मुझे रूहें दे या मुझे मौत दे। वो दुआ करने वाला शख्स जिसके बारे में लिखा है, वो इतना झुकता था, इतनी दुआ करता था कि उसका दिल एक जगह से दूसरी जगह पर झुकने के सबब से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। इतना दुआ करता, इतना झुकता था, क्योंकि उसे रूहों का पता था कि रूहों के साथ कैसे करना है। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। हालेलुया। तो मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर मैथ्यू आप सामने आए।